السلام علیکم، سچ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں مہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو ہر مشکل کی گرہ کھولنے والا ہے۔ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ ہمیں ہر قسم کی بیماری اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے وار تیز ہو گئے۔ وبا میں مبتلا مریضوں کی تعداد 14,885 ہو گئی، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 327 ہو چکی ہے۔ اب تک ملک بھر میں 16,05,911 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,530 لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ملک میں 16,911 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ ان میں سے 806 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا، جبکہ 26 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3,425 افراد کرونا مرض سے مکمل صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ صوبہ پنجاب کی صورتحال سب سے خطرناک ہے، جہاں کے مریضوں کی تعداد دیگر صوبوں سے زیادہ ہے۔ صوبہ پنجاب میں اس وقت 5,827 افراد اس موذی مرض میں مبتلا ہو کر اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ دیگر صوبوں کی بات کی جائے تو صوبہ سندھ میں 5,291، اسلام آباد میں 297، صوبہ بلوچستان میں 915، خیبر پختونخوا میں 2,160، آزاد کشمیر میں 65، جبکہ گلگت بلتستان کے 330 کنفرم کیسز ہیں۔ اس موذی مرض سے صحتیاب ہونے والوں میں آزاد کشمیر کے 35، بلوچستان کے 176، گلگت بلتستان کے 222، اسلام آباد کے 36، خیبر پختونخوا کے 533، صوبہ پنجاب کے 1,306 اور صوبہ سندھ کے 925 شہری شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس پھیلانے پر ہم چین سے خوش نہیں، سنجیدہ نوعیت کی تحقیقات جاری ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کے احتساب کے لیے کئی آپشنز موجود ہیں، تحقیقات میں چین ذمہ دار ٹھہرا تو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ چین نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ٹیسٹنگ کے معاملے پر ایئر لائن سے مل کر کام کر رہے ہیں، دیگر ملک بھی ہم جتنی ٹیسٹنگ کریں تو کیسز کی تعداد زیادہ آئے گی۔ چین اور امریکہ کی کرونا وائرس کو لے کر الفاظ کی گولہ باری جاری۔ ٹرمپ نے کرونا کو چائنیز وائرس کہا تو چین نے ووہان میں کرونا وائرس پھیلانے والی امریکی فوجی خاتون کی شناخت کا دعویٰ کر دیا۔ چائنیز سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات گردش کر رہی ہے کہ چین اور دنیا بھر میں کورونا وائرس پھیلانے کی ذمہ دار امریکی فوجی مارٹجی بیناسی ہیں۔ اگرچہ مارٹجی بیناسی کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور نہ ہی ان میں کسی طرح کی علامات ظاہر ہوئی ہیں، تاہم سازشی نظریات پھیلانے والوں نے ان پر امریکی حکومت کے ساتھ مل کر کورونا وائرس کو گزشتہ سال اکتوبر میں چین تک پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے۔ مارٹجی بیناسی کا نام پہلی مرتبہ مارچ میں سامنے میں آیا تھا۔ مارٹجی بیناسی امریکی فوج کی سویلین ملازم ہیں اور امریکی فوج کے فورٹ ویولاج ورجینیا میں تعینات ہیں۔ بیناسی نے چین کے شہر ووہان میں ملٹری ورلڈ گیمز میں حصہ لیا تھا۔ ان کے خلاف امریکہ میں سب سے سخت بیان 59 سالہ امریکی یوٹیوب ویڈیو میکر جارج ویب نے جاری کیا۔ جارج ویب کا دعویٰ ہے کہ کورونا وائرس امریکی فوجی لیبارٹری میں بنایا گیا اور اسے مارٹجی بیناسی اپنے ساتھ ملٹری اولمپکس میں شرکت کے موقع پر ساتھ لے گئیں۔ چین کے سرکاری اخبار دی گلوبل ٹائمز نے بھی جارج ویب کے بیان کو پیش کرتے ہوئے انہیں واشنگٹن ڈی سی کا ایک تحقیقاتی صحافی قرار دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان جاؤ لی جانگ نے بھی کہا ہے کہ امریکہ نے یہ وائرس چین منتقل کیا۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے ان دعووں کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ چینی حکومت کی طرف سے کسی کا یہ کہنا غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ وائرس امریکہ نے پھیلایا۔ دنیا بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 31,36,507 ہو گئی۔ 9,53,321 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ کرونا وائرس سے دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد 2,17,813 ہو گئی۔ امریکہ میں کرونا متاثرین کی تعداد 10,35,765 ہو گئی۔ اسپین میں 2,32,706 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ برطانیہ میں 1,61,145 افراد کرونا وائرس کا شکار ہیں، جبکہ روس میں متاثرین کی تعداد 93,558 تک پہنچ گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 5,641 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے نبیل لکھوی۔
اور میں کرونا وائرس کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1408 ہو گئی۔ علاوہ ازیں پنجاب میں کرونا وائرس کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 204 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق 768 زائرین سینٹرز، 1925 رائے سے منسلک افراد، 86 قیدیوں سمیت 2951 عام شہریوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی بات کی جائے تو ننکانہ صاحب میں 13، قصور میں 58، شیخوپورہ میں 19، راول پنڈی میں 296، جیلوں میں 55، اٹک میں 19، چکوال 4، گجرانوالہ میں 154، سیالکوٹ 113، نارووال میں 15، گجرات میں 228 شہریوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ حافظ آباد میں 28، منڈی بہاولدین 3، ملتان میں 69، خانیوال میں 6، وہاڑی میں 49، جبکہ فیصل آباد میں 57 شہریوں میں موذی مرض کی تصدیق ہوئی۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں میاں والی 20، خوشاب میں 13، بکھر میں 10، بھاول نگر 12، بھاولپور 19، لودرا 4، ڈیرہ غازی خان 26، مظفر گڑھ 23، لیا 2، سائیوال 2، اکاڑا 18 اور پاک پتن میں 7 کرونا وائرس کے کنفرم مریض موجود ہیں۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق کرونا وائرس سے اب تک کل 95 اموات، 1380 افراد صحت یاب، جبکہ 22 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اب تک کل پنجاب میں 75,229 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ پی ایم اے کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے مؤثر نہ ہونے سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس سے آئندہ ماہ صورتحال خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ حکومت طبی عملے کو حفاظتی کٹس کی فراہمی کے ساتھ SOPs پر عمل درآمد کروائے۔ کیمرامین محمد زامن کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ کورونا وائرس کے عفریت کو شکست دینے کا جتن، سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبے میں ہر قسم کے جلسے اور جلوس نکالنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ سندھ میں یوم علی علیہ السلام کے مجالس اور جلوسوں پر بھی پابندی ہوگی۔ ہم یہاں پر اس چیز کا جو ہے اس کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی، ہر قسم کے لاک ڈاؤن کی۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو، لیکن صاحب بھائی نے جیسے کہا کہ بھوک سے تو ہم نے نہیں مرتے ہوئے دیکھا اس عرصے میں کوئی۔ چونکہ یہ ہیلتھ اور طبی مسئلہ ہے تو اس میں وہ ہمارا مشورہ مانیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے تراویح گھر میں بھی پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہوگا، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ بالکل تاجر برادری، اور جب انسانی جانیں رہیں گی تب ہی اس کے بعد ہی ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے روزمرہ کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اسی تیزی کے ساتھ یہ وائرس پھیلتا رہا اور ہم نے احتیاط نہیں کیا، جیسے ہم لوگ نہیں کر رہے، مارکیٹس میں چلے جائیں، مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، شٹر نیچے ہے لیکن لوگ اندر دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ ہم لوگ بول تو رہے ہیں کہ ہم نے مارکیٹس بند کی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، آپ لوگ خود مارکیٹ میں گھومتے ہیں، لیکن یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ ملک بھر کے ڈاکٹروں اور ماہرین نے کرونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے مئی کے مہینے کو اہم قرار دیتے ہوئے لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا مطالبہ کیا، تو سندھ حکومت نے بھی بھرپور تائید کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ حکومت نے رمضان المبارک کے دوران صوبے میں ہر قسم کے مذہبی تقریبات، جلسے اور جلوسوں پر پابندی عائد کر دی۔ 19 سے 21 رمضان کے دوران یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے مجالس اور جلوسوں پر بھی پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق رمضان المبارک کے مساجد میں شبینہ اور ختم القرآن کے اجتماعات پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سندھ حکومت کے مطابق یہ اقدامات صوبے میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ عالمی وبا میں صف اول کے سپاہی بھی کرونا کی زد میں، پاکستان میں فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے طبی عملے کے 399 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ کرونا سے اب تک 5 ہیلتھ پروفیشنلز شہید بھی ہو چکے ہیں۔ سجاد قاسمی رپورٹ کریں گے۔ کرونا وبا کے مریضوں کے لیے دن رات جاگ کر خدمات دینے والے مجاہد بھی کرونا سے متاثر۔ ملک بھر میں جہاں عام افراد کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، وہیں صحت کے شعبے سے وابستہ 399 افراد کو بھی اب تک یہ وائرس اپنا نشانہ بنا چکا ہے۔ ملک بھر کے 399 ہیلتھ پروفیشنلز میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 193 ڈاکٹرز، 61 نرسز اور 145 دیگر ہیلتھ ورکرز شامل ہیں۔ کرونا کے شکار ہیلتھ ورکرز میں سے 166 ملک کے مختلف آئسولیشن وارڈز، جبکہ 136 مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 92 ہیلتھ ورکرز نے کرونا کو شکست دے دی ہے۔ کرونا سے اب تک 5 ہیلتھ پروفیشنل جاں بحق ہو چکے، جن میں سے گلگت 2، جبکہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ایک ہیلتھ پروفیشنل شامل ہیں۔ سجاد قاسمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔
मजहबी मुनाफरत मुतनाज़ा शहरियत बिल और बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने रिपोर्ट जारी कर दी है। नाम निहाद जमहूरी मुल्क का भयानक चेहरा बेनकाब, भारत अक़लियतों के लिए पहली बार खतरनाक मुल्क करार। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में अक़लियतों के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। अमरीकी कमीशन मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में भारत को पहली बार अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार देते हुए भारत को CPC ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2019 में मजहबी आज़ादी के नक्शे में तेजी से नीचे आया। सालाना रिपोर्ट में मुतनाज़े भारतीय शहरियत बिल पर शदीद तनकीद की गई। रिपोर्ट में वाज़े लिखा है कि 2019 में भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ। बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कड़ी तनकीद की गई। अमरीकी कमीशन ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने के इक़दामात को भी आड़े हाथों लिया। रिपोर्ट में जहां भारत का मकरू चेहरा आया किया गया है, वहीं पाकिस्तान में उठाए जाने वाले इक़दामात की तारीफ भी की गई है। करतारपुर राहदारी खोलने पर पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ समेत सिख यूनिवर्सिटी और तालीमी अमूर पर नजरसानी के हुकूमती इक़दामात को सराहा गया है। सीनियर तज्जियाकारों ने अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट को भारत का असल चेहरा करार दिया है। कहते हैं भारतीय मजालिम 70 साल पर मुहित हैं, जिससे पर्दा हटा दिया गया है। पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ यकीनन खुश आइंद है। मजालिम इस कदर बड़े हैं तो अरब ममालिक ने पहली बार उस पर आवाज उठाई, उस पर संजीदगी से लिया, क्योंकि ये मामला जो है भारत से निकल के गल्फ ममालिक में भी पहुंच गए थे। और दुबई में भी जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते, पहले तो वो पाकिस्तान को मुसलमानों को बना दे, लेकिन अब जब UAE में, सऊदी अरब में वहां से बैठ के इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू करना किया, तो उस पे आवाज आलमी बिरादरी में भी उठाई गई। उसी का नतीजा है जो उन्हें जितनी तेजी से आगे की तरफ जा रहे थे, मुसलमानों को पामाल करते, दीवारों से लगा रहे थे, उनसे जो आजादियां थी वो सल्ब की जा रही थी। तो इसी का नतीजा है कि जो रिपोर्ट आई है, अब जो आई है, तो इसमें भारत के जो उसको मजीद आया कर दिया है। जो उसने नाम निहाद जमहूरी, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क के दावेदार थे कि जो एक प्रोग्रेसिव की तरफ जाना चाहते थे, उसका ऐलान किया करते थे, लेकिन ये जब से मोदी आए हैं उसके बाद से मजालिम बढ़े हैं। लेकिन बहरहाल देर है दुरुस्त शायद एक कम से कम दुनिया ने इनके असल चेहरा तो देख लिया। एक बड़ी काबिश है पाकिस्तान की भी इसके अंदर। फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में इंसदादे कोरोना इक़दामात की कलई खुल गई। रिपोर्ट में बंद मशीनों से शहरियों का टेम्परेचर देखने का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में इंसदादे कोरोना इक़दामात की कलई खुल गई है। मजीद जान लेते हैं शुएब अल्ताफ से। शुएब, किसी को कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है अलाइड अस्पताल में? जी बिल्कुल काशिफ, अलाइड अस्पताल फैसलाबाद डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पे रोजाना हजारों की तादाद में मरीज रुख करते हैं। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल के बड़े बड़े सेक्शंस में जो है वो OPD है, मेडिकल इमरजेंसी है, इसके अलावा सर्जिकल इमरजेंसी है, बर्न यूनिट है, एडमन ब्लॉक बहुत बड़ा है इसके अलावा कैंसर वार्ड है और प्राइवेट वार्ड समेत ब्लड बैंक और बहुत सारे सेक्शंस है। इसके बहुत बड़ा अस्पताल है फैसलाबाद का। अब मामला ये है कि यहाँ पे सिर्फ OPD और मेडिकल इमरजेंसी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स को वो टेम्परेचर चेक करने वाली थर्मल गन्स दे के खड़ा किया गया है, जो कि बंद मशीनें लोगों के माथा के सामने करके सिर्फ ड्रामा करते हैं कि इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। जबकि दीगर हजारों की तादाद में जो लोग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का रुख करते हैं, उनका किसी किस्म का ना तो कोई टेम्परेचर चेक किया जाता है और ना ही किसी किस्म के कोई हिफाजती इक़दामात है उनके लिए। लोग जा बजा वैसे ही गैदरिंग में, ग्रुप्स में जो है वो बैठे हैं, ना उनकी कोई चेकिंग है, ना उनको कोई पूछने वाला है कि आप कौन हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी ट्रेंड नहीं है, ना उनके पास किसी किस्म के कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, ना उन्होंने कोई मास्क पहने हुए हैं, ना वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी गफलत जो है वो अलाइड अस्पताल इंतजामिया की सामने आई है और इस कदर जो है वो खतरनाक है कि किसी भी लम्हे जो है किसी बहुत बड़े जो हादसे का और कोरोना वायरस के खास तौर पे जो है वो फैलाव का बायस बन सकती है। इसके लिए मुनासिब इक़दामात किए जाने की जरूरत है। ट्रेंड स्टाफ हो जिनके पास पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो, PPEs हो जिनके पास, और हर जगह पे जहां पे लोगों का आना जाना है वहां पे कम से कम सही गन्स के साथ, थर्मल गन्स के साथ जो है वो चेक करें लोगों को, ताकि जो है वो पता चल सके कि कहां पे इंफेक्टेड बंदा है, उसका बर वक्त तदारुक किया जा सके। लेकिन इंतजामिया बिल्कुल
خوابے خرگوش کے مزے لے رہی ہے, لوٹ رہی ہے, ان کو کسی قسم کی لوگوں کی زندگیوں کی پرواہ نہیں ہے. اتنے بڑے اسپتال کی انتظامیہ کا اس قدر غافل رہنا جو ہے وہ انتظامیہ کی کارکردگی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جی شعیب, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. آئین کا آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد بھارت کا مقبوضہ کشمیر کی مسلم آبادی پر ایک اور وار. مقبوضہ وادی کی مسلم آبادی کو تبدیل کرنے کے لیے 3 لاکھ غیر کشمیری ہندوؤں کو ڈومیسائل فراہم کر دیے گئے. تمام عالمی اصول ایک طرف, اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی کسی خاطر میں نہیں. بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی. مقبوضہ وادی کی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 لاکھ سے زائد غیر کشمیری ہندوؤں کو ڈومیسائل فراہم کر دیا. کشمیر کی مسلم شناخت ختم کرنے اور ہندوؤں اور دیگر افراد کو بسانے کے مذموم مقاصد کے ساتھ ڈومیسائل فراہم کرنے سے مقبوضہ وادی کے باسیوں کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ بہت جلد بھارت مقبوضہ وادی میں 8 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں اور 6 لاکھ سے زائد غیر کشمیری مزدوروں کو بھی ڈومیسائل فراہم کر کے ریاست کا باشندہ تسلیم کر لیا جائے گا. بھارت کے فسطائی حکمرانوں کے ایجنڈے کی تکمیل کی خواہش انگار وادی کو ایک بار پھر تشدد کی لہر کی جانب ڈھکیل سکتا ہے. عوامی تحریک جلد بھارت کو منطقی انجام تک پہنچا سکتی ہے. مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. شوپیاں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. نہ انسانیت اور نہ ہی انسانی حقوق کا پاس. مودی کے پیروکاروں کی مقبوضہ وادی میں بربریت جاری. شوپیاں میں مزید 3 کشمیریوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سیکیورٹی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کے دوران جوانوں کو شہید کیا. ملہورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 3 جوان غازی ابراہیم، برہان اور ناصر بٹ کو ابدی نیند سلا دی. گزشتہ 10 روز کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 6 الگ الگ واقعات میں 15 جوانوں کو شہید کیا ہے. جوانوں کی شہادت پر پورے علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. ادھر حریت قیادت نے جوانوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیوں کو رائیگان نہیں جانے دیں گے. خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. صنعتی شہر گجرانوالہ میں لاک ڈاؤن کے باعث اسٹیل فرنس جیسی بڑی انڈسٹری بند ہونے سے امکان ہے کہ جہاں اربوں روپے کا نقصان مالکان کو ہوا تو وہیں ہزاروں مزدور بھی بے روزگار ہو چکے ہیں. مزید جانیں گے رئیس خورشید سے. رئیس آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, گجرانوالہ پاکستان کا تیسرا بڑا صنعتی شہر ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو چھوٹے تجارتی مراکز تھے ان کو کھولنے کی اجازت دی گئی تھی, لیکن جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہ ابھی بھی بند ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں اسٹیل ملز میں. ایک اسٹیل مل ہے یہاں پہ, کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ مل اسکریپ باہر سے امپورٹ کرنے کے بعد اس کو پگھلا کر یہاں پہ اس سے سریا بنایا جاتا ہے اور دیگر جو لوہے کی چیزیں ہیں وہ اس سے بنائی جاتی ہیں, لیکن یہ تاحال بند ہے. اس کے ٹھنڈا ہونے سے کئی ہزار مزدور ہیں جن کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. مل مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے اور کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے؟ گجرانوالہ میں اسٹیل انڈسٹری کے 50 سے 55 یونٹ تقریباً جو ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے, ان کی انسٹالمنٹ کی جائے اور ایس او پیز جاری کیے جائیں تاکہ یہ انڈسٹری چل سکے. اور یہ منسلک ہے چونکہ امپورٹ کے ڈیمیج ڈیٹیکشن ہمیں پڑ رہے ہیں, کاروبار بالکل ٹھپ ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے ہمیں پورٹ پہ بھی ریلیف دیا جائے. خدا را اس انڈسٹری کی طرف دھیان کیا جائے. ہزاروں مزدور بے روزگار ہیں, تو ایس او پیز جو ہے نا جاری کیے جائیں. ہم انڈسٹری کو چلانا چاہتے ہیں. بالکل, آپ نے مالک ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بجلی کے بلز ہیں انہیں ان میں ریلیف دیا جائے تاکہ جو بے روزگار جو مزدور ہیں, ہزاروں مزدور اس پیشے سے وابستہ ہیں, اس مل سے وابستہ ہیں, ان کا جو کاروبار ہے, ان کا جو گھر کا چولہا ہے وہ چل سکے. رئیس خورشید اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ. شیخو پورہ کی انتظامیہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں جبکہ چھوٹے بڑے تاجروں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میاں مہران اجاز سے. جی مہران بتائیے گا. جی بالکل, لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیخو پورہ کے مین بازار میں دکانداروں نے اپنی مرضی سے دکانیں کھول لی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انتظامیہ نام کی تو یہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. انہوں نے خود کو جو اپنے دفاتر میں آئسولیٹ کیا ہوا ہے, اور انتظامیہ کو جو باہر سڑکوں پہ انہوں نے کھلا چھوڑ دیا کہ جائیں بازاروں میں جائیں, کرونا کا شکار بنے اور خود بھی مریض بنے اور لوگوں کو بھی مریض بنائے. جبکہ انتظامیہ اس حوالے سے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی حکمت عملی پڑھا رہی ہے. جبکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انتظامیہ نے, حکومت نے چند مخصوص کاروبار کو جو کھولنے کی اجازت دی تھی, مگر یہاں پر جو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے اور جو
ताजरों ने अपनी मर्जी से दुकानें खोली हुई है और उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि लोगों को कोरोना को खौफ को खुद दावत दे रहे हैं और इंतजामिया हिकमत अमली अपनाने से बिल्कुल कासिर नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया मेहरान एजाज। सादिकाबाद में मुखय्यर हजरात की जानिब से शहरियों के लिए सस्ता रमजान पैकेज का आगाज कर दिया गया, जहां अशिया खुरनोश सस्ते दामों फरोख्त की जा रही है। मजीद जानेंगे आसिफ ऐवान से। आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में लॉकडाउन और ऊपर से रमजानुल मुबारक के हवाले से सादिकाबाद में रिलीफ रमज़ान पैकेज जो है वो शुरू किया हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इस बारे में कि ये कब तक जारी रहेगा और इसमें जो रिलीफ दिया जा रहा है वो कितना है। हमने ये जो रमज़ान पैकेज शुरू किया है इसमें तो हम तकरीबन 25% जो है रिलीफ दे रहे हैं और हर आइटम पर, और ये मुसलसल पूरा महीना हमारी कोशिश है कि ये जारी रहे और कम से कम 27वीं तक तो लाजमी हम कोशिश करेंगे कि इसको जारी रखें और जितने भी अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इंशाल्लाह होंगे और हम बेहतर से बेहतर जो है ना वो खिदमत करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी मैं गाहक की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। मैंने देखा है कि वाकई बहुत यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है। हर सामान में तकरीबन 50 से 60 रुपए फी किलो के जो है वो कम करके दिए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि यूटिलिटी स्टोर से भी कुछ कम रेट पर हमें यहाँ पे मैसर है। अल्लाह ताला इनको उम्र दराज करे और इनके काम में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, शहरी की भी आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से रिलीफ दिया जा रहा है और ये पूरा माह जारी रहेगा, जिससे मुस्तहिक और आसिफ अमान आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर फैसलाबाद में मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद में रमजान पैकेज तकसीम किया गया। शुरा का कहना था कि लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद होने की वजह से इमदाद का सिलसिला जारी रखना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। हजरात की जानब से मुस्तक अफराद में राशन की तकसीम का अमल जारी है। रजाबाद में मुस्तक अफराद में रमजान पैकेज तकसीम किया गया। मुखय्यर हजरात का कहना था कि लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद होने की वजह से मुस्तक अफराद के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जिससे उनके सहरी और अफ्तारी के औकात मुतासर हो रहे हैं। सफेद पोश तबका सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है, इसलिए इमदाद का सिलसिला जारी रखने की जरूरत है ताकि मुस्तक अफराद भी सहरी और अफ्तारी की लज्जतों में शामिल हो सके। लोगों के घरों तक वो राशन पहुँचाए ताकि लोगों की मुश्किल में जो है ना वो कमी आए और आसानियां पैदा हों और अल्लाह ताला उससे राजी होगा। और ख़ासकर इस वक्त जबकि कोरोना की वबा दुनिया भर में फैली हुई है और लोग घरों के अंदर महबूस होकर बैठे हुए हैं और लोगों को राशन की किल्लत है। ZIH के जो सरपरस्त आला हैं मुश्ताक अहमद कम्बोज साहब, उनकी बहुत ज़्यादा काविश है और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, जितना उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं। हम उनकी तमाम काविश का शुक्रिया अदा करते हैं उनका। आज भी रमज़ान पैकेज तकसीम किया है और हम नेक्स्ट भी जो है वो करते रहेंगे कि आप लोग भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आप लोग करें। जितने भी गुरबा और यतीम और बेवा को राशन दिया गया, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर उनके घरों में राशन तकसीम कर दिया गया है। मुस्तक अफराद की जानब से मुखय्यर हजरात की इस काविश को भी सराहा जा रहा है कि बर वक्त रमजान पैकेज की तकसीम से वो रमजानुल मुबारक में अपनी सहरी और अफ्तारी को अच्छे अंदाज में एहतमाम कर सकेंगे। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। माह सयाम शुरू होते ही वादी कोयटा में शीनी जायके और ग़िज़ाइयत से भरपूर फरहत बख्श फल तरबूज की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी कहते हैं कि तरबूज उनके दस्तरखान का अहम जुज़ है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। कुदरत ने तमाम फलों को मौसम के लिहाज से तख्लीक किया है। ग़िज़ाइयत से भरपूर तरबूज भी एक ऐसा ही रसीला फल है जिसमें दीगर बेशुमार खुसूसियात के साथ साथ मौसम से लड़ने की ताकत भी शामिल है। सुर्ख रंग और शीरी जायके से भरपूर तरबूज यूं तो दीगर कई हवालों से लोगों में मकबूल है, लेकिन माह सियाम में इस फरहत बख्श फल का इस्तेमाल सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में आम दिनों की निस्बत बहुत बढ़ जाता है और शहरी अफ्तारी के वक्त इसे अपने दस्तरखान का एक अहम जुज़ समझते हैं। रमजान में प्याज ज्यादा लगता है, इस वास्ते से ज्यादा इस्तेमाल होता है और लोग ये ज्यादा लेता है इस वास्ते से कि बदन के पानी ज्यादा हो जाए, कम नहीं हो जाए। तरबूज तो वैसे भी इंसानी बॉडी के लिए जरूरी है और खास तौर पे किडनीज को बड़ा फायदा होता है इसका। अल्लाह ने इसमें एक ऐसी नेमत रखी हुई है जिसमें पानी ज्यादा होता है, इंसान की जितनी पानी कम हो जाती है रोजे में वो ये पूरी कर देता है। अच्छा है, हम लोगों को खाने में मजा करता है, तबीयत बराबर रहती है, सारे दिन की खुश्की होती है वो खुश्की खत्म हो जाती है। रमजानुल मुबारक में अफ्तारी के वक्त ग़िज़ाइयत से भरपूर तरबूज का जूस भी कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा।
सिंध में लॉकडाउन का 47वां रोज है। पुलिस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कार्रवाइयां करके 471 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिंध पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक कराची से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 96 अफराद को गिरफ्तार करके 35 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि अंदरूने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 84 अफराद को धर लिया गया। दूसरी जानिब कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 291 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में दीगर तफरीही मकामात के साथ साथ साहिल समंदर पर भी शहरियों की नक्लो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी है। शहरियों के साहिल पर न आने से समंदर का पानी साफ शफाफ हो गया, साहिल भी कचरे से पाक दिखाई दे रहा है। ये वही साहिल है जहां लॉकडाउन से पहले कराची वालों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए यहां का रुख करती थी, लेकिन गुज़िश्ता एक माह से जायद जारी पाबंदी के बायस समंदर की बल खाती हुई तेज लहरें और उड़ती हुई रेत नजर आ रही हैं। साहिल समंदर पर शहरियों के मौजूद न होने से पानी भी साफ हो गया है और यहाँ की फिजा में शफाफियत महसूस की जा रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद यकीनन साहिल समंदर की रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी, लेकिन आने वाले शहरियों को यहाँ की सफाई का खास ख्याल रखना होगा। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। आपको खबर दें कि अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की चौथी खेप की तरसील बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों को भी सामान रवाना कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को 29,098 सर्जिकल मास्क और 1,200 N95 मास्क अरसाल कर दिए गए। बलूचिस्तान को 38,798 सर्जिकल मास्क और 1,600 N95 मास्क अरसाल कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एनडीएमए की जानिब से के सामान जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ तरफ जो है वो जारी है और आज से जो है वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए अस्पतालों के लिए सामान जो है रवाना किया गया है। एनडीएमए की जानिब से टीबी के लिए जो है वो 29,098 सर्जिकल मास्क और 1,200 N95 मास्क अरसाल किए गए हैं, जबकि बलूचिस्तान के लिए 30,798 सर्जिकल मास्क और 1,600 N95 मास्क अरसाल किए गए हैं। इसी तरह से टीबी को 5,469 सफाती सूट। सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। उधर लाहौर शहर में लॉकडाउन का 36वां रोज जारी है। शहर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अब तक 2,106 FIR दर्ज की गई हैं, लेकिन शहरी घरों में रुकने का नाम तक नहीं ले रहे। रिपोर्ट करेंगे जैन नकवी। कोरोना वायरस के पेश नजर लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। शहर में अब तक लगाए गए नाकों पर रोके गए शहरियों की तादाद 1,98,200 से तजावुज कर गई। 1,74,733 गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार मालिकान से नाकों पर पूछगिछ भी की गई। लाहौर पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक अब तक शहर भर में 99,575 मोटरसाइकिलों, 25,962 रिक्शों, 5,094 टैक्सियों, 36,029 कारों और 9,259 बड़ी गाड़ियों को रोककर बाहर आने की वजह पूछी गई है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 7,144 मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ थानों में बंद हैं। गैर जरूरी घरों से निकलने वाले 4,368 शहरियों से दोबारा बाहर ना निकलने के श्योरिटी बॉन्ड्स भी लिए गए हैं। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद कहते हैं कि कोरोना वायरस मुतासरीन में इजाफे के पेश नजर शहरी संजीदा रवैया इख्तियार करें। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना वबा की जंग में पाक फौज कौम के हमकदम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वायरस से मुतासिर होने वाले कौमी एयरलाइन के अमले का CMH में इलाज कराने का ऐलान करा दिया। मुश्किल की इस घड़ी में बरी और फजाई अफवाज के सरबराहन का ऐसन कदम। आर्मी चीफ ने कोरोना का शिकार PIA अमले का CMH में इलाज, जबकि एयर चीफ ने कौमी एयरलाइन के अमले को C-130 त्यारों में नशिस्तें देने का ऐलान कर दिया। अब PIA के अमले का मुल्क भर में कायम कंबाइंड मिलिट्री अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में इलाज होगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलिक अरशद ने बरी और फजाई सरबराहन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मुश्किल घड़ी में अदारों का तावन कौमी ताकत का सबब बनता है। उन्होंने कहा कि 24,000 अफराद PIA के जरिए अपने घरों को पहुंच चुके। दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए परवाजें चला रहे हैं। आखिरी पाकिस्तानी की वापसी तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। अंदरूने मुल्क परवाजें न होने से PIA का फजाई अमला फंस गया था।
पंजाब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स खत्म करने का ऐलान कर दिया। 1 मई के बाद पंजाब भर की तमाम यूनियन काउंसिल्स गैर मुअस्सर हो जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट पर एक और वार। सूबाई हुकूमत ने यूनियन काउंसिल को खत्म करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में वाज़ेह लिखा है कि यूनियन काउंसिल 1 मई से पंजाब भर में खत्म कर दी जाएंगी। यूनियन काउंसिल में काम करने वाले सेक्रेटरीज को 30 अप्रैल तक की इजाजत दी गई है। पंजाब भर में लोकल बॉडीज एडमिनिस्ट्रेटर को मरासला भिजवा दिया गया। मुताल्लिका नोटिफिकेशन लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया। विफाकी काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते देने की मंजूरी दे दी। इजलास में मालियाती मुआहदों से मुतालिक बिल्स 2020 की मंजूरी का भी फैसला कर लिया गया। काबीना ने लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ाने के कौमी राबता कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना के इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में शिबली फराज और आसिम सलीम बाजवा ने पहली मरतबा शिरकत की। वफाकी काबीना ने मालियाती मुआहिदों से मुतालिक बिल्स 2020 की मंजूरी दे दी। इजलास में मुतअद्दिद लिमिटेड कंपनियों में डायरेक्टर्स की खाली असामियों पर नामजदगियों और पाक अरब रिफाइनरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की मंजूरी दी गई। काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते देने की भी मंजूरी दे दी। काबीना ने लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ाने के कौमी राबता कमेटी के फैसले की तौसीक की, जबकि साफियों और साफती इदारों की माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई। मावन खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में कोरोना वायरस पर कायम कौमी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई, जबकि लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ाने के कौमी राबता कमेटी के फैसले की भी तौसीक की गई। काबीना ने पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी, सुई नादरन गैस, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट ऑयल एंड गैस कंपनी में नामजदगियों की मंजूरी भी दे दी। चीनी आटा बहरान जिम्मेदारान को सजा देने के दावे अपनी जगह, इंक्वायरी रिपोर्ट्स में ताखीर। क्या माजी की तरह इस बार भी मामला सर्द खाने की नजर हो जाएगा? कई सवालात जन्म लेने लगे। कई चीजें मसलन चीनी ये जो महंगा हुआ है, और मैं ये आज आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा और हमें पता चलता जा रहा है कौन कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया इससे। ये मेरा आपसे वादा है कि एक तो इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। माफिया को लगाम देने के दावे वादे अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि मसनूई चीनी बहरान पैदा करने वाला माफिया अब भी कानून की गिरफ्त में न आ सका। करीबी साथियों को बचाने की कोशिश या मामला कुछ और। माफिया को लगाम देने के लिए बनाए गए कमीशन को मजीद 3 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम का जीना दोभर करने वाला माफिया बेलगाम, लेकिन विफाकी हुकूमत कमीशन को मोहलत देने में मसरूफ। विफाकी काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते की मोहलत देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ साथ विफाकी वज़रा भी कई बार दोहरा चुके कि माफिया को इबरतनाक सजा दी जाएगी। IPP के चोर, कर्जा माफ कराने वाले चोर और शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला मकाम पर पहुंचेंगे। वज़रा के बयानात अपनी जगह, लेकिन इंक्वायरी कमीशन को दी जाने वाली 3 हफ्ते की मोहलत ने कई सवालात खड़े कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने विफाकी हुकूमत के इदारों और वजारतों में काबीना की मंजूरी के बगैर तयनाती पर नोटिस ले लिया। रिपोर्ट 5 मई को काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान ने तमाम वजारतों को खत लिखकर इतला दी है कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तैनात तमाम अफसरान को फारिग किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तैनात होने वाले अफसरान की तफसीलात भी तलब की हैं। काबीना के इख्तियार हासिल करने वाले वज़रा की मंजूरी से तैनात अफसरान की लिस्ट भी तलब की गई है। इमरान खान ने तमाम वफाकी वजारतों और उनके मताहत इदारों से 30 अप्रैल तक भर्तियों की रिपोर्ट तलब की है और भर्तियों की ये रिपोर्ट 5 मई को काबीना इजलास में पेश करने की हदायत की है। शेखुपुरा में महकमा सेहत के 32 करोड़ रुपए टेंडर करप्शन की नजर हो गए। महकमा सेहत ने मनपसंद ठेकेदारों के नाम टेंडर जारी कर दिए। अमले की मिली भगत से महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच गया। जराये के मुताबिक महकमा पब्लिक हेल्थ शेखुपुरा के अमले की ठेकेदारों के साथ में मुबैना मिली भगत सामने आई है, जिसके तहत महकमे के ठेके पोल की नजर हुए। जराये के मुताबिक मनपसंद ठेकेदारों में टेंडर पोल करने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मजहर इकबाल, पब्लिक हेल्थ अनवर और सब इंजीनियर सलीम बाजा मुलव्वस हैं। जराये के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस और एक्सिम ने 64 लाख रुपए के टेंडर्स अपनी मर्जी के ठेकेदारों को दिए, जबकि टेंडर्स में हिस्सा लेने वाले दीगर ठेकेदार 25-25 हजार रुपए लेकर खामोश हो गए, जिसकी वजह से महकमे पब्लिक हेल्थ के 32 करोड़ के टेंडर्स करप्शन की नजर हो गए।
और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बैक नेकी की टोकरी सच टीवी की जानिब से अहम मुहिम जिसकी शहर शहर पजीराई जारी है। शहरी कहते हैं नेकी की टोकरी मुश्किल के इस दौर में एक बेहतरीन काविश है, इसको जारी रहना चाहिए। हम इसको सराहते हैं क्योंकि ये जो है अफराद जो है मुस्तहिक अफराद इसे ले जाते हैं और लेने वाले को खबर नहीं होती है, ना ही आर महसूस करते हैं और देने वाले खामोशी से दे जाते हैं। ये समझने की अच्छी कैंपेन है माशाल्लाह। शुरू किया नेकी की टोकरी एक मुखैर बंदा जो है 1200 का सौदा लगा, अगर 50 रुपए का सामान उस टोकरी च रख जाएगा तो गरीब बंदे का फायदा हो जाएगा और गरीब बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि मैंने सामान किन्ने दिता है और एक सफेद पोश लोगों का बड़ा अच्छा जरिया मुआश बन जाएगा। कोशिश की है नेकी की टोकरी बहुत अच्छा कदम है, इससे सफेद पोश लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनको मांगना नहीं पड़ेगा और एक बगैर मांगे उनकी जरूरत की चीज उनको इस टोकरी से मिल जाएगी। शुरू किया है काम, ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत से लोगों को फायदा पहुंचेगा, सफेद पोश लोगों को भी और जो इससे नीचे तबका है उनको भी। और ये मुखैर हज़रात जो हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो जहाँ अपना सामान लेते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा डालें ताकि इस नेकी की काविश में उनका भी हिस्सा डले। और मैं समझता हूँ कि सच न्यूज़ की ये काविश को हमें और बढ़ाना है। रमजान के आया गिरा फरोशों के मजे हो गए। महंगा फरोशों ने रोजेदारों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सब्जियां, फल और गोश्त सभी महंगे हो गए। जुड़वा शहरों के बासी कहते हैं इंतजामिया गरीब शहरियों की मुश्किलात का तदारुक करे। लॉकडाउन में रमजान मुबारक की आमद ने ग्राम फरोशों के वारे न्यारे कर दिए। सब्जियों में आलू, प्याज, मटर और फलों में क्या सेब, क्या खजूरें और क्या ही तरबूजे, सब के सब गरीबों का मुंह चढ़ा रहे हैं। ज़िबाशुदा मुर्गी को भी ऐसे पर लगे कि शहरियों की पहुंच से दूर हो गई है। एक ही रोज में 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। नहीं, यहाँ की रेट लिस्ट नहीं पता। ये पता है कि 250 के करीब खरबूजा था धड़ी का, ये 400 कह रहे हैं। वो कहता 150 रुपए दर्जन है, लेकिन रेट लिस्ट मैंने मांगी उससे कहता नहीं है। जो ये रेडी लगाते हैं ना, ये किसी इजाजतनामा इनके पास होना चाहिए और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट तय करती है रेट वो इनको आवेदन करना चाहिए। सब्जी और गोश्त फरोश अलग ही रोना रोते नजर आते हैं। इंतजामिया मंडी में कीमतें तय करे ताकि रिटेल फरोश को मुनासिब दाम में मिले, जिससे शहरियों को भी सस्ते दामों में अशिया मिलेंगी। कस्टमर कहता है दुकानदार लूट रहा है, तो दुकानदार कैसे लूटेगा? जब वो मंडी से खुद लटीज के आएगा तो ज़ाहिर बात वो महंगा बेचेगा। ये तो मजिस्ट्रेट इसको चाहिए मंडी जाए, उधर से सौदा दुकानदार को सस्ता मिले और वो दुकान पे सस्ता ला के बेचे। शहरी कहते हैं इंतजामिया ने हमें ग्राम फरोशों के रहम करम पर छोड़ दिया है। इंतजामिया फौरी एक्शन ले और रमजान मुबारक में लूट मार करने वाले ग्राम फरोशों से निजात दिलाए। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। एक तरफ लॉकडाउन और कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ हुकूमत की जान। इसी तरह इस साल भी है और लोग उसी तरीके से खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़रूरत की चीज़ें तो लेनी है। तो कतई नज़र इस चीज़ के महंगाई है लेकिन कंट्रोलिंग कहीं से भी नहीं है। तो कंट्रोलिंग अगर होती तो शायद। आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, हम तो कुछ नहीं कहेंगे मगर जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। कभी महंगाई कम हो जाती, कब आज टमाटर 20 रुपए किलो दे रहे, कल 10 दे रहे थे। सस्ताई होनी चाहिए गरीबों के लिए, वो कुछ तो पैकेज होना चाहिए हुकूमत की तरफ से भी और आम लोग बड़े लोगों की तरफ से भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ फैसिलिटी मिल ही नहीं रही है। गरीब बंदा और गरीब हो जा रहा है। जिसके जगह घर पे जाके तो 5 खाने वाले, 1 कमाने वाला कैसे गुजारा कर रहा है वो उसका दिल जानता है भाई। चीज़ें अपने हिसाब से ही बेची जा रही है, जिस हिसाब से चल रहा है। किसी से आलू ले लो तो वो आलू अगर 30 रुपए किलो चल रहा है तो वो 40 रुपए किलो भी बेच रहा है, 50 रुपए किलो भी बिक रहा है। तो मुख्तलिफ रेट हर जगह सुनने में आ रहे हैं क्योंकि देखिए रेट में फ्लैक्चुएशन जब तक नहीं रुकेगी जब तक आपकी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी। लाहौर में माह सयाम के दौरान भी सब्जियों की सरकारी नरखनामे पर फरोख्त को यकीनी न बनाया जा सका। लीमों की कीमत 200 रुपए के बजाय 450 रुपए तक बिक रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केट से गायब हैं। इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे। माह सयाम में भी लाहौरियों की मुश्किलात कम न हुई। शहर में मुंह मांगे दामों पर सब्जियों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने चाइना लीमू का रेट 200 रुपए किलो मुकर्रर किया मगर बाजार में 450 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शलजम 11 रुपए के बजाय 50 रुपए, नया आलू 50 की जगह 60 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। प्याज का सरकारी निर्ख 40 रुपए है लेकिन दुकानदार फी किलो के 60 रुपए वसूल कर रहे हैं। लहसुन देसी 125 के बजाय 250 रुपए किलो में मिल रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, जो मर्जी किसी का रेट लगाई बैठा, अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं सब।
कोई यानी कि इसमें कोई हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। शहरी कहते हैं हुकूमती दावे सुनकर थक चुके, अशिया के रेट कम होते नजर नहीं आते। सब्जी फरोशों के मुताबिक मंडी से भी रेट लिस्ट पर सामान नहीं मिलता, ग्राहकों को कैसे सरकारी निर्ख पर फरोख्त करें। कभी मंडी में जाएं, वहाँ चेक करें कि आपका जो वो मार्केट की कमेटी का अमला वो कितना तावन कर रहा है आवाम के साथ, मंडी में उन्होंने कितना कंट्रोल किया हुआ है। कीमतों में इस्तेहकाम न होने से खरीदारों के साथ दुकानदार भी परेशान हो गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरियों का कहना है कि मुनाफाखोरी के खात्मे के बगैर अशिया की कीमतों में कमी नामुमकिन है। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर पीसीबी पर बरस पड़े, शुएब अख्तर की पीसीबी की लीगल टीम पर कड़ी तनकीद। पीसीबी लीगल एडवाइजर तफसल रिजवी का नालायक करार दे दिया। शुएब अख्तर ने मजीद कहा कि पीसीबी का लीगल डिपार्टमेंट नालायक तरीन शोबा है। मोहम्मद आमिर को क्यों वापस लाया गया? मजीद कहा कि आमिर के लिए अलग कानून, सलमान बट और आसिफ के लिए अलग अलग कानून है। शुएब अख्तर मजीद बोले, पीसीबी खुद मैच फिक्सर्स को अंदर लाया और फिक्सर्स को बचाया गया। शर्जील को भी अब वापसी का मौका दिया गया है। सख्त सजाएं देकर मिसाल कायम करना होगी। कानून को लीगल डिपार्टमेंट है वो इंतहाई दर्जे का नालायक और इंतहाई दर्जे का गिरा हुआ और बहुत ही नालायक डिपार्टमेंट है। इसमें खास तौर पे मैं जो नाम लेता हूँ फजल रिजवी है, वो एक पता नहीं कहां से वो आ जाता है और तलकात उसके बड़े अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं से घुस के आ जाता है और फिर 10-15 साल से वो पीसीबी के साथ लगा हुआ और माशाल्लाह कोई ऐसा केस नहीं है जो वो हारा नहीं है अभी तक। इसकी बड़ी मिसाल मैं हूं, एक केस मुझसे भी हारा हुआ और एट द सेम टाइम मुझे जो सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ा जो शाहिद अफरीदी को उन्होंने कचहरियों में घसीटा और जो कचहरियों में उनको जेके उनको जलील किया यूनुस खान पे, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा था, चेयरमैन के ऊपर भी और इसकी लीगल डिपार्टमेंट के ऊपर। और ये जो 2 टके के जो वकील होते हैं ये आते जाते रहते हैं, इनको दोनों घर वाले भी सही तरह नहीं जानते, तो इनको अदालतें भी नहीं सही तरह जानती। ये हमारा केस हाई प्रोफाइल केस लेके अपना नाम बनाते हैं और कस्टमर बनाते हैं और इसलिए मैं वार्न कर रहा हूं लोगों को इससे कि प्लीज ये इंतहाई दर्जे का नालायक आदमी है और मुझसे बहुत सारा केस आ रहा है और अफरीदी से भी केस आ रहा है और बाकी डोपिंग टेस्ट केस का भी हुआ था वो भी आ रहा हुआ है, सारे केस आ रहे हैं। ये करता ये है कि उलझाता है केस को, पीसीबी से पैसे पूसे पकड़ता रहता है, पीसीबी को उलझाई रखता है, प्लेयर्स के साथ पीसीबी दूसरों के साथ उलझा रहता है और ये पैसे बनाता रहता है। लीगल डिपार्टमेंट ऑफ पीसीबी इस इंतहाई दर्जे का गिरा हुआ और घटिया किस्म का एक डिपार्टमेंट है जो पीसीबी को देखना चाहिए। सो इतनी बड़ी चोरी पीसीबी की जानिब से हुई और इतनी बड़ी नालायकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानून की तरफ से हुई और अगेन ये तफाजुल रिजवी जो है ये इंतहाई दर्जे का नालायक आदमी है जिसने ओवरलुक किया, एक बाबर शाबर भी है। ये वो नालायक डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से पीसीबी को ये आप टाइम देखना पड़ रहा है और हमें वीडियो बनानी पड़ रही है। अगेन मैं ये समझता हूं कि पहले आपने यू आर फेलिंग टू रिपोर्ट टू दिस नेशन कि आपने ऑनलाइन गेमिंग की बैटिंग के ऊपर जो सबलेट कॉन्ट्रैक्ट आपने आगे जो स्ट्रीमिंग राइट दिए थे उन्होंने आगे जो राइट्स दे दिए ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, ये आपने हमको क्यों नहीं बताया कि आपके हमें तो छोड़े टीम के जो ओनर्स हैं उनको नहीं पता कि उनकी गेम्स के ऊपर ऑनलाइन बैटिंग हो रही है। क्यों आमिर को वापस लाया आपने? एक कानून सलमान बट के लिए एक कानून, मोहम्मद आसिफ के लिए दूसरा कानून और मोहम्मद आमिर के लिए दूसरा कानून। फिर आपने उसको स्टार बनाने की कोशिश की, उसने क्या किया? आपने पूरे सिस्टम को मारा तफा मारा आपने पूरे सिस्टम को और आमिर को वापस ले आया। फिर आमिर ने आपको तफा मारा आगे से, उन्होंने कहा मैं खेलता ही नहीं क्रिकेट, जाओ टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं, मैं पे बैक करता ही नहीं पाकिस्तान टीम। There you go. So, जब तक आप स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे आप कैसे करें? और आजकल जो लोग बातें कर रहे हैं जो कभी अपने टाइम पे सीईओ थे, बोर्ड में सीईओ थे, जो अपने टाइम में बोर्ड में थे, जो चेयरमैन थे, जो सीईओ थे, तब बैन करते हैं ना, अब बड़ी बड़ी ऊंची आवाजें लगाते हो कि जी इनको जेलों में डालो। तो जब तुम थे तब क्यों नहीं डाला तुम्हें जेलों में? तब तुमने कानून क्यों नहीं बनाया? सो लोगों में मैच फिक्सिंग को कवर दिया गया बोर्ड की जानिब से भी, लोगों को बचाया गया, बोर्ड ने लोगों को बचाया, बोर्ड ने लोगों को मैच फिक्सर्स को अंदर लाया और लोग खेले। और लोग आज तक यही समझते हैं कि चलो यार मैच फिक्सिंग कर ली, क्या 6 महीने का बैन गुजार लूंगा, 2 साल का गुजार लूंगा, शर्जील की तरह फिर वापस आ जाऊंगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान आलमे इस्लाम और दुनिया के दूसरे ममालिक में बसने वाले मुसलमान सबसे लंबी इबादत रोजा रख रहे हैं। लेकिन इस साल रमजान की खास बात इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी की रौनकें मान पड़ गई हैं।
में फैली कोरोना वबा के दौरान मुसलमानों की सबसे लंबी और सबसे अहम इबादत रोजे का महीना रमजान आ गया। हर साल इस महीने में मुसलमान हर काम छोड़कर सिर्फ इबादत और रोजे में मसरूफ रहते हैं। रोजेदार का ज्यादातर वक्त घरों और मसाजिद में इबादत करते गुजरता था। लॉकडाउन की वजह से इबादत अब सिर्फ घरों तक महदूद रहेगी। रमजान के महीने में आलम इस्लाम और दुनिया के दूसरे ममालिक में बसने वाले मुसलमान खास तौर पर अफ्तारियों का इंतजाम करते थे। ये अफ्तारियाँ मसाजिद और खुली जगहों पर की जाती थीं। गरीब मजदूरों और मुस्तहिक अफराद के लिए मुखय्यर हजरात सड़क किनारे इंतजाम करते थे, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन ने इस साल रोजेदारों की खुशी भी छीन ली है, जो मुसलमान बहन भाइयों को रोजा अफ्तार करवा कर हासिल होती थी। समाजी फासले के हुकूमती अहकामात की वजह से इज्तिमाई अफ्तारियों के बजाय दुनिया भर में मुसलमान गुरबा के घरों में अफ्तारी और सहरी का सामान पहुंचा रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी इज्तिमाई अफ्तारी पर पाबंदी आयद है। गरीब के दरवाजे पर अफ्तार पहुंचाने का मिशन अंसाफ रमजान एक्शन कमेटी और सच न्यूज हाथों में हाथ डाले मैदान में आ गए। यूनियन काउंसिल्स की सतह पर मुस्तहकीन को दहलीज पर अफ्तार पहुंचाने का सिलसिला जारी है। पीटीआई शुबे खवातीन की रहनुमाओं का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत से दिली सुकून मिलता है। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रमजान एक्शन कमेटी और सच न्यूज की तरफ से मुस्तहकीन तक इफ्तार पहुंचाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की मरकजी रहनुमाओं नौशीन हामिद और सीमी इज़्ज़ी का कहना था कि रमजानुल मुबारक बरकतों और रहमतों वाला महीना है, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। हमेशा रमजान आता है, मगर इस दफा पाकिस्तान जो है वो बड़े मुश्किल हालात में से गुजर रहा है और हम एक बहुत बड़ी वबा का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में इस किस्म के सोशल जो अटेम्प्ट्स होते हैं उनकी और भी ज्यादा जरूरत होती है। हर दिन 250 दिए जाएंगे, 2 यूसी हर रोज कवर होंगी, यानी कि 500 रैली जाएंगे। तो ये मैं दरखास्त करूंगी लोगों से कि बढ़ चढ़ के इनको पैसे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा नीलोफर बख्तियार, वेलफेयर विंग के मरकजी नायब सदर मलिक शिराज व दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हर यूनियन काउंसिल में जा रहे हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत से दिली सुकून मिलता है। सच न्यूज की काफिशें काबिल तहसीन है। अब तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।